Now let's do the textual exercise of chapter number 23. First question is based on MCQ. Okay, the first question of MCQ is the primary function of any government is to. The correct answer is use resources for the welfare of its citizen. Okay, now come to the second question. A resource allocation plan must. The correct answer is suit the needs of the people. Now, the third question, the state government nowadays carries out the process of resource allocation through the correct answer, Niti Aayog. Next, the National Rural Health Mission NRHM was launched in 2005. The health index was prepared by the Niti Aayog. Okay, now come to the state whether the following statement are true or false and rewrite the incorrect statements to correct them. Now let us see. A country resources can be natural, material and human. The correct answer, it is to be true. Okay, it is to be true. Sorry, it is true. Now, second is the Niti Aayog is headed by the governor. It is false. It is false. The correct answer is the Niti Aayog is headed by the Prime Minister, who is also the head of the Council of Ministers. Okay. Now, question number 3. A minister introduces a bill in the assembly to help the officials working under him. It is also false. Correct statement will be a minister introduces a bill in the assembly to cater to the requirements of the people in better way. Understood? Now question number 4. The Janani Suraksha Yojana program in Kerala conducts medical camps in remote tribal areas. It is also false, because Janani Suraksha Yojana has been implemented with the objective of reducing maternal means an infant mortality by promoting an option for deliveries in public or accredited private health institutions. ओके मीन्स ये जो जनानी सुरक्षा योजना है जो गर्भवती महिलाओं के लिए और उनकी मृत्यु दर को जो बच्चे के जन्म के समय जो मृत्यु दर हो जाती है, बच्चे जन्म लेते ही मृत्यु उनकी हो जाती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए जनानी सुरक्षा योजना चलाई गई है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Immunization services has helped to save many a child's life in Kerala. It is true. Okay. Now come to the question answer in one sentence. Who makes the decisions regarding resource allocation? अब देखो रिसोर्स एलोकेशन में जो डिसीजन लिया जाता है कौन लेता है, तो ये हमारे नीति आयोग है. हाँ, तो आंसर आप लिखोगे द रिकमेंडेशन मेड बाय द नीति आयोग फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज आर टेकन इनटू अकाउंट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिफोर डिसाइडिंग अपॉन द मैनर ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. ओके, जो रिकमेंडेशन है वो किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा होता है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स. और ये जो है ये बिल के थ्रू किसके द्वारा लाया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा वो डिसाइड करते हैं.
Next question is, which mention the three dimensions of health. Mention the three dimensions of the health. The three dimensions of the health are physical, mental and social. Now the question number 3, which are the two types of healthcare services available to the people of India? So the correct answer will be private and public are the two types of healthcare facilities available to the people of India. Okay. Now come to the question number 4. When was the National Rural Health Mission NRHM launched in India? Already it was in question MCQ. So you have to remember this one. The government of India had launched the National Rural Health Mission in 2005. Now question number 5. What is the Health Management Information System? What is the Health Management Information System? So your answer will be, the Kerala state is initiating a health management information system for online reporting and analysis of a variety of medical data which are necessary for healthcare. It is called a health management information system. Okay. Now come to the question number 4. Answer the following question in brief. Means यहाँ पर आपको आंसर 4 से 5 लाइन में देना है इस क्वेश्चन में. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म रिसोर्स, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एलोकेट रिसोर्सेज. मतलब यहाँ आपको पता ना रिसोर्स का मतलब क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है रिसोर्स का एलोकेशन करना, बंटवारा करना. हाँ, सही जगह में उनका इस्तेमाल करना. हाँ, तो क्या कारण है. नाउ लेट अस सी. देखो, द कलेक्टिव वेल्थ ऑफ अ कंट्री इज टर्म्ड एज इट्स रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कैन बी नेचुरल, मटीरियल एंड ह्यूमन. ह्यूमन भी एक तरह का रिसोर्स है. मटीरियल मीन्स जो मटीरियल्स जैसे सोना, चांदी, ये सब जो हमारे रुपए पैसे, ये सब भी मटीरियल. नेचुरल हो गया रिसोर्स हमारा, जैसे एयर है, सनलाइट है और वाटर है, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्स हो गया. It is important to allocate resources to ensure a balanced plan for their use. बैलेंस तरीके से यूज़ करने का होना चाहिए. एंड टू इंश्योर इक्वल डेवलपमेंट ऑल रीजन ऑफ द स्टेट. ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस तरह से रिसोर्स है कि जहाँ पर मतलब एयर की ज़रूरत है, एयर या वाटर की ज़रूरत है, तो वहाँ पूरा का पूरा वाटर हम जैसे जो बिजली उत्पन्न करना, तो वो सारे वाटर सब जगह बांध बना के बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, तो पानी की खपत दूसरे तरीके से होने लगती है. मतलब यूज़ यूटिलाइजेशन, तो दूसरा डैम बने जा रहे हैं, तो ये पूरा एनवायरनमेंट में अफेक्ट करता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. होना चाहिए ऐसा कि इस तरह से एलोकेट हो कि सब तरफ का डेवलपमेंट हो, सब जगह. ये नहीं कि सिर्फ एक ही दिशा में डेवलपमेंट हो रहा है. तो यहाँ पर कहा जाता है एंड ensure equal development all region of the state. This includes the promotion of social and economic justice by creating employment opportunities and focusing on backward region by the government. ठीक है. Now come to the question number 2. What is there? What does health mean according to World Health Organization? WHO के अनुसार हेल्थ का मतलब क्या होता है. अभी आप देख रहे होंगे कि अभी कोरोना काल में WHO का कितना ये हो रहा है. उनके बार बार स्टेटमेंट आते हैं कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए. वो पूरे वर्ल्ड को वो गाइडलाइन दे रहे हैं कि ऐसा आप लोग नहीं कीजिए. ऑलवेज दे हैव टू वियर द मास्क एंड सैनिटाइज योर हैंड, लाइक दैट मेनी इंस्ट्रक्शन दे आर गिवन. कि इसकी तो वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड
सारी जानकारी जो दे रही हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कोरोना है तो कोरोना को पैंडेमिक इन्होंने ही घोषित किया कि ये एक महामारी का रूप ले रहा है, तो सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये इनिशिएटिव आता है। तो ये कहा गया कि हेल्थ का मतलब उनके नज़र में क्या है, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया कि पूरे विश्व के लोगों के हेल्थ को मतलब ध्यान में रखकर कोई भी दवाई है या कोई रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ भी है, तो उनके गाइडलाइन के थ्रू पूरे विश्व में प्रचार होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग of an individual and society at large, and not merely the absence of disease or infirmity. हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब ये सारे चीज़ों में हेल्थ का मतलब इन सभी बातों में प्रॉपर होना चाहिए एक इंडिविजुअल को, एंड अ सोसाइटी एट लार्ज, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और एफॉर्मिटी। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बीमारी ना हो और वीकनेस ना हो तो इसका मतलब ही हेल्थ है। हेल्थ का मतलब क्या, पूरा मतलब मानसिक तरीके से भी प्रॉपर होना चाहिए, फिजिकली भी प्रॉपर, और सोशल समाज में भी जो स्थिति है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। तो WHO में हेल्थ का मतलब ये बताया गया। ये नहीं कि किसी डिजीज़ का ना होना और वीकनेस ना होना तो वही हेल्थ है, उसको नहीं। उसमें हमें मेंटल है, सामाजिक स्थिति हमारी क्या है, या हमारी फिजिकल कंडीशन क्या, सबको ऑल टुगेदर लिया जाता है हेल्थ में। फिर क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या सर्विसेज अवेलेबल है इंडिया में, तो Public healthcare services in India, the government of India has a number of hospitals and health center across the country. बहुत सारे हॉस्पिटल्स और ये हैं, spread across both urban and rural areas. These are established with the help of money from taxes that the citizen of the country pay. The public healthcare facilities include quality healthcare services as either free or at a very low cost. This is done so far that even poor people can have access to quality medical treatment. तो ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है इंडिया में पूरा अर्बन एरिया, रूरल एरिया सब जगह फैले हुए, और यहाँ पर गवर्नमेंट क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देती है, और जहाँ पर बहुत ही नॉमिनल प्राइस होता है। और वो ये जो हॉस्पिटल्स है पूरे कंट्री में सेटअप है, वो किसके द्वारा होता है, ये टैक्सेस जो देते हैं पीपल के द्वारा, जो टैक्सेस मनी है उससे गवर्नमेंट पीपल के लिए ही तैयार करती है। अभी देखो जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ये बहुत तरह गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि चेक करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, मतलब फैसिलिटीज़ जो है दिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, पहले से तैयारी कर ली गई है कि जहाँ पर मतलब जब नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ेंगे तो किस तरह से अरेंजमेंट करना है। तो ये सारे हाथ किसके, इसमें गवर्नमेंट के हाथ में, फॉर द हेल्थ पर्पस ऑफ द सिटीजन के हेल्थ पर्पस को ध्यान में रखते। कितने सारे जैसे पुलिस वगैरह हैं वो खड़े रहते हैं कि जो मास्क नहीं पहनेंगे उनको पनिश किया जाएगा, उनसे जुर्माना लिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से दिखाए जाते हैं, क्यों, ये महामारी का रूप ना ले और ज़्यादा ना फैले। हालांकि ये तो महामारी पैंडेमिक घोषित हो चुका है और बहुत ही इसमें बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज़ भी उनका बहुत ही नुकसान हुआ है। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी रहती है कि किस तरह से हम अपने सिटीजन को हेल्थ फैसिलिटीज़ दें। तो पब्लिक हेल्थ केयर उसी से रिलेटेड होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है और जो कि सिटीजन के टैक्सेस से ही तैयार होती है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेशनल हेल्थ मिशन? व्हाट इज़ द नेशनल हेल्थ मिशन? अब ये क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन 2005। ठीक है, उस समय फिर उसके बाद 2030 में द गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। रूरल एरिया में
इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में, और ये अर्बन एरिया में फिर इसको इस्टेब्लिश किया गया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को 2013 में, एंड बोथ केम टू बी रिप्रेजेंटेटेड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन 2013। अब ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नेशनल हेल्थ मिशन को। तो द नेशनल हेल्थ मिशन फाइनेंसेस हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो यहाँ पर जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंडर में ये दोनों चलते, जो NRHM और NUHM, और ये क्या फैसिलिटेट कराती हैं? फाइनेंसेस हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। मेंशन सम ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन इनिशिएटिव्स इन केरला। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चैप्टर में केस स्टडी ऑफ द केरला का पढ़ाता है कि किस तरह से हेल्थ सिस्टम वहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और क्या कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत हमने इसमें पढ़ा। तो उसी में यह पूछा जाता है कि केरला में जो हेल्थ मिशन है क्या इनिशिएटिव ले गया वो बताना है, मेंशन करना हमें। तो यहाँ आंसर है the activities of Directorate Health Services administered by the government of Kerala, ठीक है, include the establishment and maintenance of medical institution with necessary infrastructure, control of communicable disease, rendering of family welfare services including maternal and child health services, implementation of national programs for the control and eradication of this disease. Some of the community health care programs already in place in the Kerala are national program for the control of blindness, national tuberculosis control program, national leprosy eradication program and mental health program. तो ये जो है ये एक्टिविटीज़ है, ये प्रोग्राम्स है केरला में चलाए जा रहे हैं फॉर द welfare of the citizen. Now question number 5th. Answer in detail. How is the process of resource allocation in a state? क्या प्रोसेस है रिसोर्स एलोकेशन का, किस तरह से रिसोर्स को बंटवारा किया जाता है स्टेट में? तो आंसर है It is the responsibility of the state government to improve primary health care. प्राइमरी हेल्थ केयर का ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि हेल्थ केयर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बल दिया जाए। तो इसके लिए द नीति आयोग इन अ कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ रिलीज्ड अ हेल्थ इंडेक्स इन 2018. द इंडेक्स विल हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेजर इम्प्रूवमेंट of a state in a terms of the health infrastructure and would be linked to incentives under the National Health Mission. As per a report, Kerala held the first rank in terms of overall performance. Let us look at the healthcare process adopted by the government of Kerala. इतना बहुत नहीं लिखोगे, आप सिर्फ ये भी लिखोगे कि these are the healthcare process adopted by the government of Kerala. First is Directorate of Health Service administered by the government of Kerala oversees the establishment and maintenance of medical institution with necessary infrastructure. ठीक है, फिर उसी में सेकेंड पॉइंट है सम ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स ऑलरेडी इन प्लेस इन केरला आर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। मतलब ये जो कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोग्राम ऑलरेडी केरला में चलाए ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद है द स्टेट हैज़ बीन एबल टू इनिशिएट मेनी प्रोग्राम दैट मैच द की परफॉर्मेंस areas financed by the National Rural Health Mission and the National Urban Health Mission, two branches of the National Health Mission. अब ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की तरफ से या नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की तरफ से बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जा रहे हैं फॉर द हेल्थ ऑफ द सिटीजन. Now next is what is the difference between the public health care service
and the private health care service. यहाँ 1, 2, 3 points है. The government of India runs a number of hospitals and health centers across the country. Public health care गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाए जाते हैं. और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, large number of hospitals and nursing homes are privately owned. A large number of doctors also have private practices. प्राइवेटली ओन्ड, ये जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस है वो प्राइवेटली ओन रहता है. फिर उसके सेकेंड पॉइंट है स्प्रेड. जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें क्या होता है, जो सर्विस है उसमें क्या होता है, स्प्रेड अक्रॉस बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज. ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस है वो दोनों ही एरियाज में होते हैं. देयर आर established with the help of money from taxes that are citizen of the country pay. तो ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज है पब्लिक अर्बन एरियाज़ या रूरल एरियाज़ में, ये दोनों जगह पाए जाते हैं, दोनों जगह होते हैं. और ये जो चलाए जाते हैं वो सिटीज़न के टैक्स के द्वारा ही चलाए जाते हैं. लेकिन जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस है वो दोनों जगह अर्बन और रूरल एरियाज में चलाया जाता है, लेकिन उसको स्टैब्लिश इंडिविजुअल द्वारा किया जाता है और कंपनीज करती है यूजिंग देयर ओन मनी, अपने फ़ायदा के लिए. वहाँ पर वो खुद फॉर देयर ओन प्रॉफिट, हाँ, दे यूज़ देयर ओन मनी. थर्ड पॉइंट, द पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्लूड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एज आइदर फ्री और एट अ वेरी लो कास्ट. जो पब्लिक हेल्थ केयर में जो फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं वो या तो फ्री दिए जाते हैं या तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट दिया जाता है. अभी देखो कोरोना काल में यदि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग जाते हैं तो 10-12 लाख की उनकी बिल चढ़ जाती है, लेकिन यदि गवर्नमेंट के सिविल हॉस्पिटल में दे आर एडमिटेड तो वहाँ उनको बहुत नॉमिनल चार्ज लिया जाता है. सिंस दीज फैसिलिटीज़, अब जो प्राइवेट में क्या होता है, दीज फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल के द्वारा फॉर देयर ओन प्रॉफिट के लिए सेटअप किया जाता है. तो सम ऑफ दिस सर्विसेज आर एक्सपेंसिव एंड एट टाइम्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द कॉमन में, और ये जो कॉमन पीपल है उसके पहुंच के बहुत दूर होता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? What is the function of the Director of Health Service in Kerala? Director for Health Service केरला में उनका क्या functions हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, the Director of Health Service administered by the Government of Kerala provides preventive and promotive health care. Preventive means बचाव, promotive means ऐसा मतलब उस बचाव को प्रोत्साहन देने वाला हेल्थ केयर अपनाया जाता है. In addition to the routine क्यूरेटिव सर्विसेज. क्यूरेटिव सर्विस मतलब रूटीन जो क्योर डिजीज़ का क्योर करने का सर्विसेज है वो प्रदान किया जाता है. एंड रिहेबिलिटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर. और कुछ ऐसे डिजीज़ है जिसके लिए उनको रिसेटल्ड फिर से किया जाता है, तरीके से थेरेपी के थ्रू उनके डिजीज़ को दूर करने की कोशिश की जाती है. इट्स एक्टिविटीज़ इंक्लूड द एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन विथ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, rendering of family welfare services including maternal and child health services, and implementation of national programs for the control and एरेडिकेशन ऑफ डिजीज़. मीन्स ये जो हेल्थ सर्विसेज चलाई जाती है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ केरला की तरफ से जो चलाई जाती है, ये सारी फैसिलिटीज़ वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है उनके कॉमन पीपल के लिए. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. What are the reasons for the success of Kerala's healthcare program? क्यों सक्सेस हुआ है हेल्थ केयर प्रोग्राम केरला में? तो इसमें आपको आंसर क्या लिखना है? द रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ केरला हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आर एज फॉलोज. क्या क्या? प्रायोरिटी इज गिवन टू द अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. अपग्रेड किया गया. आप भी एक मोबाइल लेते हो तो मोबाइल लेते हो, जैसे सपोज 7 वर्जन, 8 वर्जन, 9 वर्जन, 10 वर्जन आ गया तो आप उसको देख रहे हो कि ये 10 वर्जन आ गया तो आपका 8 है तो आप उसको अपग्रेड करने के लिए कुछ उसमें डालते हो तो अपग्रेड होता है ना. उसी तरह से समय के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में
अपग्रेड किया गया केरला में, इसको प्रायोरिटी दिया गया. फिर इन केरला NRHM funding has made possible to upgrade community health centers and other medical institution. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोले गए, फिर अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन के खोले गए. किसके तरफ से? NRHM की तरफ से. फिर अपग्रेडेशन ऑफ जनरल हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, तालुक हॉस्पिटल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन आल्सो टेकन प्लेस. मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस, अपग्रेड किया गया, उनको ऊपर लाया गया. फिर टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ट्राइबल several mobile medical units are functioning in the state. ट्राइबल्स के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, मोबाइल मीन्स चलता फिरता, यूनिट्स आर फंक्शनिंग इन द स्टेट. यहाँ मोबाइल वो नहीं आपको सोचना, मीन्स इस तरह से मोबाइल की चलता फिरता एक दवा खाना जिसको हम कहते हैं ना, ऐसा ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए फैसिलिटेट किया गया केरला में. दीज व्हीकल्स कंडक्ट मेडिकल कैंप्स इन रिमोट ट्राइबल सेटलमेंट्स वेयर ट्रीटमेंट फॉर बेसिक इलनेस. और ये जगह जगह कैंप लगाते. फिर कैंप आपने सुना होगा, कैंप लगाने पे बहुत सारे डिजीज़ का और डॉक्टर बैठते हैं, फिर वहाँ पर चेकअप किया जाता है. एंटीनेटाल एंड पोस्ट नेटाल केयर, मतलब जो प्रसव के पहले या प्रसव के बाद, पोस्ट नेटाल मतलब जो बच्चे होने के बाद और बच्चे के पहले जो स्थिति होती है उसकी प्रॉपर जांच की जाती है. फिर इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, ब्लड बैंक, फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज आर प्रोवाइडेड. किस तरह से बचाव करना है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो एक दूसरे से फैलते हैं, तो आपको क्या इनिशिएटिव लेना है, ये सारी बातें इसमें बताई जाती हैं. फिर अकॉर्डिंग सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स आर वॉलंटरी workers who ensure the primary health care services are accessed by the rural poor for prevention and control of the communicable disease and community based mental health program. Accredited social health activists, voluntary workers who ensure that the primary health care services are accessed by the rural poor for prevention and control of communicable diseases. Now come to the question number 5. Question number 5 is describe the program launched in Kerala for the welfare of women and children. मीन्स यहाँ पर आपको बताना है कि केरला में जो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए वेलफेयर के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए, चलाए गए, उसके बारे में आपको यहाँ बताना. ओके, अब नाउ लेट अस सी द आंसर. Program in Kerala for women and children. What are that? First, a special school health program has been launched, which will eventually cover all government and government aided schools. इसमें government और government aided schools दोनों को ही include किया गया. The program aims to develop healthy and informed adult human beings by promoting physical and mental health through the childhood and adolescence. मीन्स जब वो बाल्यावस्था में हो या युवावस्था में हो. फिजिकल एंड मेंटल प्रोग्राम पर ज़्यादा जोर दिया गया. फिर जनानी महिलाओं के लिए क्या चलाया गया, तो महिलाओं के लिए जनानी सुरक्षा योजना हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग maternal and infant mortality by promoting an option for deliveries in public or accredited private health institution. मीन्स जहाँ पर जो गारंटेड है वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम इससे प्रमोट किए गए जहाँ पर जो डिलीवरीज हों या जो मोर्टेलिटी रेट होती है, जो मृत्यु दर है महिलाओं की प्रसव के समय या जो बच्चे के जन्म के समय होती है, जब बच्चों की मृत्यु से रिलेटेड होती है, तो उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चलाए गए. तो उसमें जनानी सुरक्षा योजना प्रोग्राम चलाया गया उनके मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए. फिर इम्यूनाइजेशन, to improve the immunization status of the state, outreach camps have been
identified to organize immunization sessions in remote areas with special attention given to the tribal and coastal urban slums. कि इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी तो उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी बहुत सारे चलाए गए. इम्यूनाइजेशन इज़ नेसेसरी टू सेव द लाइफ्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन. और जितने ही छोटे बच्चों के इम्यूनाइजेशन डेवलप होंगे अच्छी तरीके से, तो वो इट विल हेल्पफुल टू सेव द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन. तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम इनिशिएट किए गए केरला में फॉर द चिल्ड्रन और द वुमेन के लिए. Okay, now the question answer is over. You have to write all the question answer in your fair notebook. Okay, thank you students. Bye, take care all of you.